अब क्या सिर्फ लॉकडाउन ही एक तरीका है जिससे हमारे देश की औरतें सुरक्षित रह सकती हैं? आई एम कंफ्यूज्ड, यू डिसाइड. This is more like disguised. You feel like it must have decreased, but it's actually not. So we do need some proper measures to actually, in real life, decrease crime against women. करना होगा. अगर सोच अच्छी है तो क्राइम नहीं होगा. क्योंकि लॉकडाउन में तो प्रशासन पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है और लॉकडाउन की वजह से बहुत ही कम लोग बाहर निकल रहे हैं. तो जो मनचले लोग होते हैं खास तौर से वो तो उसी तरीके से बाहर निकलना उनका दुश्वार हो सकता है. नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया. पहले तो वेलकम बैक टू अवर चैनल. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले. और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव उन्हें भी प्लीज शेयर करें. थैंक यू. सो रिसेंटली एनसीआरबी मतलब द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक डेटा शेयर किया है एंड उसके अकॉर्डिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन द कैपिटल यानी दिल्ली हैज रिड्यूस्ड बाय 24% इन 2020 व्हेन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ 2019. जहाँ अगर अब इन सिर्फ नंबर्स की बात करें तो लेट मी टेल यू कि ईयर 2019 में द टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन वर द रिपोर्टेड वंस ऑब्वियसली वर 12,902. वहीं ऑन द अदर हैंड साल 2020 में इट केम डाउन टू 9,782 इंसिडेंट्स, जहाँ टोटल ऑफ 967 रेप केसेस वर रिपोर्टेड इन 2020 एज अपोज टू 1,231 in 2019, लीडिंग टू अ डिक्रीज ऑफ 21%. बट हाँ, we also can't deny the fact कि strict lockdown से majority of crimes against women were registered under cruelty by husband or his relatives, जहाँ domestic violence and abuse के cases भी increase हुए हैं and the exact numbers are still not out. But I would also like to point out the fact कि जो cyber crimes हैं reported in the capital saw a huge increase of 55% in 2020 as compared to 2019. Yes, you heard it right. And I'm sure वो हम सबको कहीं ना कहीं पता भी था. बट येस, एक और फैक्ट मैं आपके सामने लाना चाहूँगी कि दिल्ली स्टिल, जी हाँ, स्टिल रिमेन्स द मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन व्हेन कंपेयर टू ऑल द अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ द कंट्रीज. सो ये तो था सम डेटा एंड फैक्ट्स रिलीज बाय द अथॉरिटीज. But I would also like to highlight one fact कि firstly चाहे on papers 2019 के comparison में crimes may have decreased in Delhi by 24%, but वहीं domestic violence cases have increased, cyber crimes have increased, but जो outside world related crimes हैं like molestation, eve teasing, they have seen a dip in the capital. So ऐसा क्यों? क्या अब हम औरतों को चार दीवारी में बंद होने की जरूरत है? अपने आप को बचाने के लिए अब लॉकडाउन ही एक जरिया बचा है. लॉकडाउन और नो लॉकडाउन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन तो है ही, वन वे और द अदर. सो ये तो था मेरा टेक. लेट्स फाइंड आउट कि इन सब के बारे में व्हाट द कॉमन मैन थिंक्स. इज लॉकडाउन द ओनली की टू अ वुमेन सेफ्टी एंड व्हाट दे हैव टू से अबाउट द इंक्रीज इन साइबर क्राइम्स एज वेल. लेट्स फाइंड आउट. My take on the topic is that lockdown is not really a solution just because the crime rate against women have gone down during lockdown. Lockdown is a temporary thing. You obviously can't live like that forever. And like I said before, inside closed doors, domestic violence has increased. Abuse against children, women, especially in rural areas, have increased. And these have all gone unaccounted because obviously during lockdown, you can't really go to a police station for issues like that. So no, I do not believe that during lockdown, crime rate against women has decreased. This is more like disguised. You feel like it must have decreased, but it's actually not. So we do need some proper measures to actually, in real life, decrease crime against women. I feel like even the lockdown, it has taken taken a toll on mental health of a lot of people. So it's not like the crime rates. Like obviously the crime rates might be decreasing, but again, like Selena said, it's because the ones we do not see. Yeah, it's disguised, exactly. But then you were talking about cybercrime. Yeah, cybercrime. I feel like in schools, like for children, in schools there should be classes or something sort of which tells them that they're not supposed to trust websites. You know, like they're supposed to check that it's HTTP or something, or a lock sort of a thing we see for the websites. And the best thing to do is just like not be dumb. Don't rush into making social media accounts. You can get scammed so many ways. You can get scammed left and right. Wait at least till you're 16 or 17, you have some common sense. Ask your parents every time you buy something online. Do not go on shady sites. Do not save your credit card information for God's sake. And just ask your parents. That's the best way to be safe. Yeah, exactly. Ask your parents and let your parents know that you're using a social media and I feel like people should like there are like some sites which are shady, you know, like if you log into them. So I feel like people should actually check before
And also increased by 55%. That's like a huge percent. So I feel like because lockdown, a lot of people have started using social media much more, and it's basically just if you're young, don't use it. It's not the And age. a lot of people Just use wait. it as a way to meet friends. See, it's okay to meet friends, but it's not that safe. We If you're talking shouldn't. to people on Omegle, don't give them your Instagram ID. Yeah. Do not tell them where you live. That's common sense. Do not give out your personal information, age, where you live, and all that basic stuff. yeah, okay. Thank you for speaking to us. Be safe and stay safe. So ma'am, according to a new report, Delhi में if we see कि cases थोड़े कम हो गए हैं, like crime against women and everything. But on the other hand, जो cyber crime है, जो internet based crime है, वो भी बढ़ गए हैं. तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? कि आपको लगता है कि लॉकडाउन ही एक जरिया है जिससे क्राइम कम हो सकते हैं? What do you have to say? लॉकडाउन से नहीं, अपना नज़रिया बदलना होगा। अगर सोच अच्छी है तो क्राइम नहीं होगा, अगर सोच खराब है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। So thinking is what that matters. जब अगर सोच ही हमारी खराब होगी तो कहीं भी चले जाओ, क्राइम तो बढ़ता ही जाएगा ना। अगर सोच ही नहीं सही है तो हम क्राइम कहाँ कम कर पाएंगे। Exactly, rightly said. And मैम आप कुछ बताइए. हाँ मैं सहमत हूँ इनकी बात से। हम लोग ये कोरोना से ऐसे अगर क्राइम नहीं होंगे तो ऐसे हम कब तक झेलेंगे? कोरोना से कितने दिन हम वो करेंगे अपना ना? तो ये तो कोई रीज़न नहीं है कि कोरोना की वजह से केस कम हुए हैं। कुछ थोड़ा सा लोगों का गैप हो गया है, इस वजह से भी थोड़े केस कम हो गए हैं, थोड़ी कम निकलने लगे हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, घर में रहने लगे हैं, घर से वर्क चलने लगे हैं, इस वजह से भी थोड़ा क्राइम पे असर पड़ा है। अपने हिसाब से आप दोनों को सजेशंस देना चाहेंगे कि आपके हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें करें कि थोड़ा बेटर सिचुएशन हो, नॉट इवन इन दिल्ली, ऑन द ओवरऑल कंट्री एज वेल? सबको एक साथ होना चाहिए, सबको ये नहीं सोचना चाहिए हमें क्या ज़रूरत है, इसके साथ हो रहा है हम क्यों पड़े इसके बीच में। सबको सबकी हेल्प करनी चाहिए, किसी के साथ भी क्राइम हो सकता है। यूनिटी. हाँ, यूनिटी होनी चाहिए। हम तमाशा देखते रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं और कुछ नहीं करते, हम किसी की हेल्प नहीं करते हैं। हेल्प एंड यूनिटी. यस मैम, हाँ जी। तो नाम बताएंगे प्लीज. मेरा नाम अमित कुमार चौरसिया है। एंड आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पर इन्फोर्समेंट टीम के रूप में काम कर रहा हूँ। विदाउट मास्क और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका लोगों को पालन कराने के लिए काम कर रहे हैं एसडीएम ऑफिस से। तो जैसे मैंने अभी आपको टॉपिक के बारे में बताया कि क्राइम रेट कम हो गया है दिल्ली में, लेकिन साइबर क्राइम 55% बढ़ गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि लॉकडाउन ही एक जरिया है कि क्राइम कम हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहना थोड़ा ठीक होगा कि लॉकडाउन की वजह से जो औरतों के प्रति जो हिंसात्मक घटनाएं होती हैं वो कम हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में तो प्रशासन पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है और लॉकडाउन की वजह से बहुत ही कम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो जो मनचले लोग होते हैं खास तौर से, वो तो उसी तरीके से बाहर निकलना उनका दुश्वार हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं हाँ थोड़ा बहुत घटा है, लेकिन ये तो बाहरी तौर पर है, लेकिन आंतरिक रूप से जो घरेलू घटनाएं हैं महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अभी तक चलते आ रहे हैं। इसको सर लॉकडाउन ही एक तरीका है कि क्राइम कम हो सकते हैं, हमेशा तो लॉकडाउन लग नहीं सकता। नहीं, लॉकडाउन एक कोई तरीका नहीं है जिसकी वजह से क्राइम को घटाया जा सके। हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, अगर उसको अच्छे से पालन किया जाए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह के थ्रू या संविधान का जो भी है पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर उसका पालन कराया जाए तो वो क्राइम घट सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होती है जिसमें पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है। ठीक है, प्रशासन खुद इन्वॉल्व होता है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, एक तरीका यही है कि बस संविधान के जो नियम कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए, जैसा अभी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारी घरेलू हिंसा घटनात्मक कम करने के लिए किया जा सकता है। So strict implementation of rules and regulations is what he suggests. Thank you for speaking. थैंक यू मैम, थैंक यू। अक्षत सानी, ओज खंडेलवाल। So आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कि लॉकडाउन तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, और अगर लगेगा तो उल्टा और शायद से क्राइम आगे बढ़ सकता है। बहुत साइबर क्राइम तो ऑलवेज इंक्रीज होगा, और साथ में और भी क्राइम्स बढ़ सकते हैं उसके अलावा, क्योंकि लोगों के पास फिर जॉब्स नहीं बचेंगी, ना उनके पास कोई काम बचेगा। बट जैसे साइबर क्राइम तो इंक्रीज हो ही गया है, सो आपके अकॉर्डिंग रीज़न क्या हो सकता है और कोई सजेशन जो आप देना चाहोगे? रीज़न यही है क्योंकि लॉकडाउन में अब सब घर बैठे नए नए यूज़र्स और ऑनलाइन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सब घर बैठ के बोर हो रहे हैं, जॉब नहीं है, तो इंटरनेट पे सब यूज़र मतलब डेटा ज़्यादा आ रहा है, तो सब उसी में साइबर क्राइम हो रहा है। मतलब कोई सजेशन? सजेशंस तो गवर्नमेंट ही कर सकती है कुछ, और साइबर क्राइम के खिलाफ कुछ ऐसे एंटी हैकिंग सिस्टम निकालने चाहिए उनको। पता लगा है? हाँ जी। आपके साथ ऐसा लॉकडाउन में या पूरे ये 2 सालों में कुछ हुआ है? हैव यू फेस्ड एनीथिंग लाइक दैट?
लॉकडाउन में ये मतलब जैसे साइबर क्राइम पे यही अलग अलग साइट्स से वो आते रहते हैं ऑफर्स, लेकिन वो सब मतलब सब पैसे लूटने के लिए ही होते हैं, कोई रियल टाइम नहीं होते, ये सब बढ़ चुके हैं लॉकडाउन में। जैसे यही जैसे साइबर क्राइम को अगर ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता है तो अगर किसी को रिपोर्ट करना है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ऑनलाइन ये ऑप्शन होने चाहिए सर रिपोर्ट करने के लिए, और उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। You are an aware consumer. Yes, So you're an aware citizen, customer, consumer. Yeah. yes, I am well aware of this. Awareness is the key. Okay. I want to say that I don't think so. Lockdown is the only way to control this crime rate. I think because we cannot always live in lockdown, so we have to. I think people should change their mentality for this, and for a good environment, people. I think do not blame anyone, or they have to be open-minded for that. Like everyone is equal, and everyone should get their rights. So yeah. And cyber crimes बढ़ गए हैं on the other hand, उसके बारे में आपका क्या कहना है? I think they should reduce the data so that people use limited. And I don't think so, because always there is a major change in the percentage of online resources and people are using for education something. But all the day people don't use for educational purpose. They use for different communication like Instagram and Snapchat, Facebook. It's always not necessary for that, and I think there should be a age factor ki what should be the minimum age for this, and different people should not they should be concerned that you're gonna make a fake ID, and so it will help to reduce rate. Yeah. Proper rules and regulations, that's it. So देखा आपने, this was the common man's perspective. और ज़्यादा नहीं कहूँगी, we'll leave it up to you to think about it and also give your insights. So that was all for today's segment. If you like today's content and video, then please do not forget to like, share and subscribe to DNP India. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep loving us, keep showering your love and keep watching DNP India.